Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear students, as you know that we are dealing with types of adverb clauses. In the previous lecture, we dealt with first four types of adverb clauses. That was adverb of manner, adverb clause of time, adverb clause of place, and adverb clause of condition. Now today we will deal with the remaining types of adverb clauses. So let's begin. So number fifth is adverb clause of comparison. As I told you that the function of adverb clause, define an adverb clause. By adverb clause we mean a clause that functions as an adverb in a sentence. Okay, that a word, if we talk about adverb, it is a word that modifies a verb, that modifies an adjective, or that modifies an another adverb. Okay, so an adverb clause is a clause that modifies a verb, an adjective, or another adverb. Okay, now let me tell you about adverb clause of comparison. What is this adverb clause of comparison? So let's begin. As you know that we make comparison by using some special words such as than, as, so as, etc. Okay, for example, if you write a simple sentence here, my friend's grandma is older than she looks. Okay, now how will you first recognize an adverb clause? As I told, there will be some special used in order to make comparison between two things. Okay, now we can find the word than here. It is here. Now when we talk about verb, our main verb is missing here, so this helping verb will act as main verb. Okay, so it is verb here. My friend's grandma is what? Older than she looks. Older than she looks. It means that she is not too much aged, but it is apparent from her body language, from her physical structure, from her face, that she looks older than her age. Okay, it means that this clause, than she looks, it is adverb clause. Okay, and which adverb clause? Adverb clause of comparison, because here then she looks, it modifies is. Are you getting me? Now here is comparison between age and look. Are you getting me? That grandma's age is not too much, but her looks represent her as being very old. Are you getting me? So this clause than she looks, it modifies our main clause here,
or it modifies verb is here. Are you getting me? So that is why we can call it an adverb clause of comparison, because than is used when we compare someone with something else. Are you getting me? Or I will write here, I work as carefully as my brother does. Okay, now we use as here, as carefully as my brother does. Okay, now here our main clause is I work. Okay, it is main clause, and this is subordinate clause. Okay, now among subordinate clause, this clause as carefully as my brother does, it is adverb clause, and from adverb clause it is adverb clause of comparison. Why? Let us see. आप सुनिए बेटा, यहाँ पे मैं आपको ऐसे समझाऊंगा। यहाँ पे कंपैरिजन है दो शख्सों के दरमियान। आई, एक तो मैं हूँ और मेरा ब्रदर है, ठीक है बेटा। अब हम इन दो को कंपेयर करते हैं कि मैं बिल्कुल उसी तरह काम करता हूँ जिस तरह मेरा ब्रदर केयरफुली काम करता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, काम करता हूँ। गौर से सुनिए बेटा, मैं क्या करता हूँ, काम कैसे करता हूँ, जैसे मेरा ब्रदर केयरफुली करता है। तो इस क्लास ने इस वर्ब को यहाँ पे क्या किया, मॉडिफाई किया, और ज़्यादा मीनिंग दी कि मैं काम कैसे करता हूँ, ठीक है, जैसे मेरा भाई करता है। तो वर्ब को किसने मॉडिफाई किया, इस पूरे क्लास ने, इसलिए इसको हम कहेंगे एडवर्ब क्लास। मगर इसमें कंपैरिजन हालांकि यूज़ हुआ है, क्योंकि मैं अपने बारे में और अपने ब्रदर के बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ, तो इसीलिए इसको हम कहेंगे एडवर्ब क्लास ऑफ कंपैरिजन। ओके, now I will move a bit fast because it is very easy now this type adverb clause of reason। जब हम कोई रीज़न देते हैं, रीज़न कैसे देते हैं बेटा, as, because और since। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आएगा। आई विल जस्ट गिव एन एग्जाम्पल हेयर। अगर आपकी बुक की तरफ जाएंगे, वहाँ पे एक सेंटेंस है वेरी सिंपल, दे कुड नॉट ब्रेक द वॉल बिकॉज इट वॉज वेरी थिक। चलो बेटा, पहले आप एडवर्ब क्लास ढूंढिए। तो रीज़न कहाँ से हम देते हैं, बिकॉज, एज या सिंस से। तो बिकॉज से लेकर एंड तक, यानी बिकॉज को हमें स्टार्ट पॉइंट लेना है, एंड पॉइंट बिकॉज के बाद आफ्टर वर्ड्स जो सारे वर्ड्स आते हैं यहाँ तक। वेरी थिक, बिकॉज इट वॉज वेरी थिक, यह हमारा क्लास बन गया यहाँ पे। दिस क्लास इज एडवर्ब क्लास, ठीक है। अब कौन सा एडवर्ब क्लास, अब हमें देखना है। इसमें रीज़न दी गई है। रीज़न क्या है बेटा, देखिए, वो वॉल को नहीं तोड़ सके, वो दीवार को नहीं तोड़ सके। क्यों नहीं तोड़ सके, ये क्यों जानने को हम कहते हैं यहाँ पे रीज़न दिया हुआ है। तो रीज़न यहाँ पे है बिकॉज इट वॉज वेरी थिक। ओके, ऐसे हम एज भी यूज़ करते हैं, सिंस भी यूज़ करते हैं। तो वेदर हम एज यूज़ करेंगे, बिकॉज या सिंस करेंगे। और यहाँ पे ब्रेक वर्ब है बेटा, वो दीवार को नहीं तोड़ सके। क्यों नहीं तोड़ सके फिर यहाँ पे, क्योंकि वो बहुत मोटा था, दीवार मोटी थी, ठीक थी, ठीक है, इसलिए वो नहीं तोड़ सके उसे। तो ये पूरी क्लास यहाँ से यहाँ तक ही मॉडिफाई करता है इसको, ठीक है, वर्ब को, इसलिए इसको हम कहेंगे एडवर्ब। और इसमें यहाँ पे रीज़न बताया गया है, वजह बताई गई, इसलिए इसको हम कहेंगे एडवर्ब क्लास ऑफ रीज़न। द नेक्स्ट टाइप इज एडवर्ब क्लास ऑफ कंसेशन। ओके, और कॉम्प्रोमाइज़ भी हम इसे कहते हैं, कंसेशन कहते हैं। तो लेट अस सी, इसीलिए इसके लिए भी हम स्पेशल वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे although, even though, ओके, एक्स्ट्रा।
बस ये 3 वर्ड्स आप याद रखेंगे, ऑल्दो, इवन दो, एक्स्ट्रा। तो ये कंसेशन क्या होता है? लेट्स टेक एन एग्जांपल, आई विल मेक यू क्लियर टू यू। ऑल्दो ही इज ए पुअर, ऑल्दो he is a poor, sorry, he is poor, comma, he has a big house। तो कॉन्सेशन क्या है? हालांकि वो पुअर है, तो ऑल्दो जिस क्लास से आएगा बेटा, ये सारा क्लास यानी कामा तक, ऑल्दो ही इज पुअर, ऑल्दो से लेकर पुअर तक ये हमारा क्लास बन गया। कौन सा क्लास बन गया? एडवर्ब क्लास। कैसे? आप ये देखेंगे। ही हैज़ ए बिग हाउस, तो मेन क्लास ये है ना बेटा, ही हैज़ ए बिग हाउस, इसमें मेन क्लास ये है। क्योंकि हमें यही जानना है उसके पास एक बड़ा सा घर है। अरे क्यों? एक बात मुझे बताओ, कैसे उसके पास बड़ा घर कैसे है? अरे वो तो गरीब है। फिर भी क्या हुआ यार? हालांकि वो, चूंकि हालांकि ऐसे कुछ वर्ड्स आते हैं, ये हमें कंसेशन दिखाते हैं। हाँ, हालांकि वो गरीब है मगर उसके पास क्या है? हालांकि वो गरीब है, उसके पास एक बड़ा मकान है। तो यहाँ पे कंट्रास्ट है, याद रखेंगे आप। यहाँ पे क्या है? कंट्रास्ट है। जहाँ भी ये कंट्रास्ट होता है तो फिर हम कंप्रोमाइज़ करते हैं। अगर इसके पास ये है तो ये, अगर ये गरीब है तो ये कैसे है? तो इसे हम कहते हैं कंसेशन। ओके, यहाँ की यानी एक क्लास में बिल्कुल कंट्रास्ट होता है, यानी कि हालांकि वो गरीब है, उसके पास एक बहुत बड़ा मकान है। इसी तरह मैं सेंटेंस बताऊँगा ऐसे ही। My friend runs fast though he is injured। मैं शॉर्ट में लिखूंगा injured। ओके, my friend runs fast, मेरा फ्रेंड जो है वो क्या, बहुत तेज रन करता है। तो दो से लेकर इंजर्ड तक, ये कौन सा क्लास बन गया? एडवर्ब क्लास। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब जो है हमें यहाँ पे है बेटा, वो रन है। तो इस रन को मॉडिफाई किया किसने? दो ही इज इंजर्ड, यानी मेरा फ्रेंड जो है वो बहुत तेज चलता है हालांकि वो जख्मी है। तो कंट्रास्ट फिर से है, तो यहाँ पे हम कहेंगे एडवर्ब क्लास ऑफ कंसेशन। द नेक्स्ट वन इज एडवर्ब क्लास ऑफ रिजल्ट। इट इज नंबर 8 टाइप ऑफ एडवर्ब क्लास ऑफ रिजल्ट। तो रिजल्ट के लिए भी हम कुछ स्पेशल वर्ड्स यूज़ करते हैं। सो दैट या सच दैट भी यूज़ करते हैं। सच दैट, हाँ, इट इज़ सो सिंपल। वन थिंग मोर, वी कैन यूज़ बोथ सो दैट, सच एंड सच दैट। इनको हम कॉम्बिनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं एक ही सेंटेंस में। सो दैट एक ही सेंटेंस में, सच दैट एक ही सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल, I felt, it is given there, so weak. I felt so weak that I could not speak। अब रिजल्ट यहाँ पे क्या है? रिजल्ट देखिए बेटा, I could not speak, I could not speak। अगर इसकी हम जिक्र करेंगे, हाँ, along with that I could not speak, तो ये हमारा क्लास बनता है कौन सा? एडवर्ब क्लास ऑफ रिजल्ट। ठीक है, तो हमारा मेन क्लास ये है, आई फेल्ट सो वीक, मैं इतना कमज़ोर पड़ गया। कितना कमज़ोर पड़ गया? दैट आई कुड, कि मैं स्पीक भी नहीं कर पाया, मैं बोल भी नहीं पाया। ठीक है, तो फेल्ट को यहाँ पे मॉडिफाई किया किसने? इस क्लास ने। तो इस क्लास को हम कहेंगे यहाँ पे रिजल्ट है। फिर क्या हुआ? जब आप कमज़ोर पड़ गए फिर क्या हुआ? उसका रिजल्ट क्या हुआ फिर? तो बाद में क्या हुआ? जब आपने बहुत वीक महसूस किया तो रिजल्ट ये हुआ। रिजल्ट क्या हुआ? मैं स्पीक भी नहीं कर पाया। ओके, नाउ लास्ट वन इज एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पस। बेटा इसकी थोड़ी सी लिंक है एडवर्ब क्लास ऑफ रिजल्ट से। ठीक है, थोड़ा सा ये मिलता है, क्योंकि यहाँ पे हम यूज़ करते हैं दैट में एंड सो दैट, और एडवर्ब क्लास ऑफ रिजल्ट में भी हम वही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इनमें थोड़ी सी डिफरेंस भी है मगर थोड़ी सी रिजेंबलेंस भी है। ठीक है, मगर मसला क्या है? बस वहाँ पे रिजल्ट होता है, यहाँ पे पर्पस है। ठीक है, मकसद है।
मकसद, हाँ, किसी बात का मकसद जानने के लिए हमें यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हियर इज सेंटेंस दैट ही माइट डिफेंड हिमसेल्फ. तो ये मेन क्लास नहीं है, तो मेन क्लास यहाँ पे है. द मैन हैड ड्रॉन हिज सोर्ड. द मैन हैड ड्रॉन हिज सोर्ड. उस शख्स ने अपनी तलवार निकाली. तो ये मेन क्लास है. अब ये क्लास कौन सा है? सबऑर्डिनेटिंग क्लास है. ठीक है. दैट ही माइट डिफेंड हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए, डिफेंड करने के लिए. तो मकसद यही था. पर्पस क्या था? उसने तलवार क्यों निकाली? पर्पस ये था, मकसद ये था कि उसको अपने आप को डिफेंड करना था. ठीक है. तो डिफेंड को यहाँ पे हम देखेंगे. सॉरी, द मैन हैड ड्रॉन हिज सोर्ड. ड्रॉन यहाँ पे वर्ब है, तो इसे मॉडिफाई किया इस क्लास ने. दैट ही माइट डिफेंड हिमसेल्फ, तो पर्पस यही था डिफेंड करने का. तो इस क्लास ने मॉडिफाई किया इस वर्ब को, ड्रॉन को, तो उसे हम कहेंगे एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पस, क्योंकि इसमें पर्पस बताया गया है, मकसद बताया गया है. तो इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन टेक केयर एंड फी अमान अल्लाह.